देखिए, एक समय था कि विज्ञान की पढ़ाई इस तरह से नहीं थी जिस तरह से आजकल है। पहले विज्ञान को फिलॉसफी के रूप में पढ़ते थे, एक दर्शन। फिर धीरे धीरे उस फिलॉसफी को कई रूपों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि आदि। पहले ऐसा नहीं था। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता है। आजकल पूरी दुनिया में विज्ञान के अनुसंधान के कारण, वैज्ञानिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण एक हलचल सी मची हुई है। हर जगह परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और कुछ लोग जो बहुत ही जीनियस है, अच्छे हैं, वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करके वो परेशानियों से दूर हो रहे हैं। अनेक लोग परेशानियों में जकड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन सी शिक्षा प्रणाली चाहिए? ऐसी स्थिति में वो शिक्षा प्रणाली चाहिए जो हमें ये शक्ति दे कि हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने नियंत्रण में लाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम खो जाएंगे, और ऐसा खो जाएंगे, पता चला जीवन का बहुमूल्य समय जो 25 साल तक होता है उसको हमने गंवा दिया। फिर उसके बाद इतनी कमजोरी, वीकनेस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि आगे जी नहीं सकते हैं, फिर जीने का मन नहीं करता है। इसलिए युवावस्था में आप देखेंगे पूरी दुनिया में डिप्रेशन हो रहा है। पहले युवावस्था में कोई नींद की गोली नहीं लेता था, डिप्रेशन नहीं होता था। लेकिन आजकल चाहे भारतवर्ष हो या कनाडा हो, यूएसए हो, कहीं पर भी हो, आप देखेंगे कि युवा वर्ग बहुत ही परेशान नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण है वैज्ञानिक संसाधनों का दुरुपयोग। दुरुपयोग से बचने के लिए हमें इतनी शक्ति चाहिए कि हम इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर सके। इंद्रियाएं, मन, बुद्धि हमारे वश में हो। Let us try to think this is very important, that education system what we have now, especially science and technology. There was a time there was no science technology like this. There was a subject, we call it philosophy. And when philosophy starts becoming practical, then this philosophy is practiced in the form of science. Various science categories like technical education, medical education, psychology, like this. At present, scientific evolution is good. We are able to communicate each other. You may be anywhere in the world. We are able to communicate freely. Through the webcam, we can see each other. We can talk each other. Because of this scientific evolution, many who are intelligent, genius, who have control over their mind and wisdom, control over sense organs, they are growing very fast. But majority are not having control over senses, control over mind and wisdom. They are losing their status. Because of this scientific development, in all over the world, young are having biggest problem. They are going into depression, into stress and tension, because they are not able to manage themselves. They are lost. When you are lost up to 25 years, then after that you will find most important, valuable time of learning is gone. Then we feel more inferiority complex, frustration. This is what is happening in all over the world. In USA, in Canada, in India, everywhere in the world, this is the problem. Then in this situation, what kind of education we need? We need education which can control our sense organs, our mind, our wisdom, reasoning power. Without having control of the sense organ, reasoning and mind, it will be difficult to feel confidence in the life. Then how to get this education?
One try to have traditional education, we do not have this kind of. Therefore, Kriya Yoga science came into existence. If you learn Kriya Yoga science more and more, you will find that we have great power to control our sense organs, control our mind, control our reasoning power. This is very important. वर्तमान समय में हम कौन से शिक्षा प्रणाली लें कि हमारी इंद्रियां, हमारे मन और बुद्धि हमारे नियंत्रण में हो? वो साइंस है जिसे हम क्रिया योग विज्ञान कहते हैं। इसलिए क्रिया विज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए बाहर के जगत में सूरज पूरब में उगते हैं, पश्चिम में जाते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं और फिर पश्चिम से फिर पूरब की ओर चलते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं हमें। तो ये जो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की सूरज की यात्रा है, इस पर ध्यान दीजिए। तो अपने अंदर भी ऐसे होता है। सूरज एक ज्ञान के प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। सूरज का प्रकाश उत्कृष्ट है, प्रकाश की तीव्रतम स्थिति है जो आता है पृथ्वी तक। इसलिए अपने अंदर का ज्ञान पूरब से पश्चिम की और पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रवाह में अगर अपना नियंत्रण नहीं है तो टेंशन होगा। बाहर का प्रवाह जो सूरज पूरब से पश्चिम जाते हैं, फिर पश्चिम से पूरब आते हैं, तो पश्चिम से पूरब आने में हमें दिखता नहीं है। वास्तव में होता क्या है, पृथ्वी घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है, जो भाग सूरज के सामने है वो दिन होता है, जो सूरज के पीछे है वहाँ रात्रि होती है। तो पृथ्वी के घूमने से, अपने धुरी पर स्पिन करने से, घूमने से ये पता चलता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है और फिर पश्चिम में अस्त हो गया, पता नहीं कहाँ गया। एक इल्यूजन होता है। इसी तरह से याद रखिएगा, हम लोगों के एक इल्यूजन है। इल्यूजन ये है कि अपने अंदर का जो ज्ञान है ये पूरब से पश्चिम जाता है और फिर पश्चिम से कहाँ गया ये पता नहीं चला। ये जैसे लुप्त हो गया। ये इसको समझना है। क्रिया योग ध्यान में क्या होता है, जैसे हमने पता कर लिया कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से ये दिन और रात्रि होती है, सूरज नहीं घूमता है। सूरज की घूमने की प्रक्रिया अलग है और 24,000 वर्ष में एक चक्कर लगता है और अपना रात्रि और दिन तो 24 घंटे का है। ऐसे जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो पता चलता है कि हमारे विचार बदलने से, हमारी मनोस्थिति बदलने से, हमारी बुद्धि के बदलने से ये प्रक्रिया प्रकट होती है कि ज्ञान पूरब से पश्चिम जाता है, फिर पश्चिम से पूरब आता है। अगर हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो इस पर हमारा नियंत्रण होता है अपने पर। फिर ये भ्रम खत्म हो जाता है पूरब और पश्चिम का। फिर पता चलता है कि सूरज तो स्थिर है, केवल हम बदल रहे हैं। अभी तो ये पता चलता है कि नहीं, हमें जो दिक्कत है औरों की वजह से है। जो ऋतुएँ हैं, जो ग्रह नक्षत्र है, चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं, बैक्टीरिया वायरस है, इनकी वजह से हमें दिक्कतें हैं। अभी ये पता है। लेकिन जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे, क्रिया विज्ञान सीखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने को बदल लें तो ये वायरस बैक्टीरिया मित्र की तरह काम करेंगे। ग्रह नक्षत्र, सौरमंडल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मित्रवत कार्य करेंगे। इसलिए क्रिया योग विज्ञान की आवश्यकता है। जैसे ये खोज लिया गया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इस तरीके से तो दिन और रात्रि होता है। ऐसे अब ये पता चलेगा सभी तकलीफ की जड़ हम स्वयं हैं, बाहर नहीं है। जैसे पता चला कि सूरज घूमते हैं गलत था, ऐसे पता चलता है कि आपके कारण हम दुखित हैं, वायरस के कारण हैं, बैक्टीरिया के कारण हैं, जो ह्यूमिड एयर इसके कारण हैं, ग्रह नक्षत्रों के कारण हैं। ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पता चले कि सारी दिक्कतों का कारण हम स्वयं हैं। जैसे दिन और रात्रि का कारण पृथ्वी स्वयं है। अपने धुरी पर न घूमती, न दिन और रात्रि इस तरह से न होता। फिर कैसा होता?
फिर दूसरी तरह से होता, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है. What is important point? At present we know that earth is rotating on its axis. This is the axis, earth is rotating. Because of the rotation of the earth on its axis, we realize day and night. In the day and night we have confusion. The sun is moving from east to west. Then from west it disappears. We do not know what happens. But scientifically it is proved, sun is not moving, earth is rotating on its axis. In the same way, we are having this kind of knowledge. Whatever problem we feel within, cause is external, virus, bacterial, astral signs, solar system, plants, animals, so many things. The cause of my problem is all of you, this whole universe. This is called wrong concept. And the cause of day and night is the movement of the earth on its axis. When axis there is no rotation of the earth, there will not be day and night. In the same way, movement of my thought, movement of my mind and wisdom, reasoning power is creating the problem. Therefore in Kriya Yoga science what we do, we learn how to have full control over this and try to control ourselves, our senses, mind and wisdom. You will find that external bacteria, virus, they help. Astral science, radiation, they help. Solar system radiation, they help. Therefore all creations, plant kingdom, animal kingdom, they help. At present we have confusion, then this confusion will disappear. Therefore I am going to give you some practice, 10 minutes. After that I will explain this. हम आपको 10 मिनट अभ्यास कराते हैं, फिर इसको हम बताएंगे. क्रिया योग ध्यान है क्या? अपने पर एकाग्र होना है, हमें अपने को समझना है. हम पूरा जीवन लगा दिए बाहर की चीज़ों को समझने के लिए. यही चीज़ वैज्ञानिक लोगों ने किया, जो आइंस्टाइन पूरे विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में एक हैं. यहाँ तक कि इनको सेंचुरी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया गया था. वहीं आइंस्टाइन स्वयं कहते हैं, अगर हमको अगला जन्म लेना होगा तो हम वैज्ञानिक नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम पड़ाव में जीवन के अब खाली नजर आ रहा है, कुछ हमारे पास है ही नहीं. अगले जन्म में हम ये अनुसंधान करेंगे कि हम कौन हैं. अपने पर एकाग्रता बढ़ाएंगे तभी हम अपना अनुसंधान कर पाएंगे. अभी हम एकाग्रता बढ़ाते हैं बाहर की चीज़ों पर, बाहर की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं. अपने को जानने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता है कि हम अपने को कैसे जानें. Now Kriya Yoga science, what is the Kriya Yoga science? This is the science of self-realization. We have to know about ourselves. We have discovered the cause of illness, sickness is bacteria, virus, plant kingdom, animal kingdom, external climate. This is the cause of problems. But in reality, this is not true. Then Kriya Yoga science speaks the science, various techniques in which we learn how to concentrate on self to realize our nature. When we start realizing our nature, then we realize cause of all problem is the self. Then how to realize ourselves? Then we have to place concentration of mind on self. Now let us practice it. आँखें हम बंद कर लें. Let us close our eyes and pay attention on head to toes. Whatever we feel, whatever we realize, presence of head to toes, changes within, accept all, they are most important, because by concentrating on them, we realize our real nature, and we realize the cause of all suffering is self.
आंख बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक, इस अलौकिक रचना की अनुभूति और इसमें जो कुछ परिवर्तन होता है, इन सब का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इनमें एकाग्रता बढ़ा करके हम अपने को जानते हैं, हम कौन हैं। अपने को जानने के बाद ये पता चलता है सारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। तो सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इस स्वरूप में एकाग्रता अच्छी तरह से बढ़ा सके, इसलिए दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। हाउ टू इंक्रीज डीपर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन हेड टू टोज। फॉर दिस place both palm on the posterior surface of head. Locate head and spine. Locate head to toes. Keeping eyes closed. Concentration of mind on space around forehead. At the same time, feel head and spine, head to toes, changes within, all are most important. आँखों को बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता, भ्रूमध्य पर और माथे के सामने जो कुछ दिख रहा है, इस दृश्य पर जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, इसका महत्व अनंत है, असीम है, क्योंकि इसी में एकाग्रता बढ़ाने पर हमें ज्ञान होता है हम कौन हैं। फिर ये ज्ञान होता है कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं। हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली। मुट्ठी को बंद करें, खोलें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन स्लोली। हाथों को ऊपर नीचे लाएं, हाथों को मोड़ें और फैलाएं। फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड से। फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। Clench your fist, open palm alternately. Move arms up and down alternately. Feel head to toes with all devotion. And whatever we realize, pay maximum attention on them. Accept them, that they are most important. They are most important. Pay highest respect and honor for them. In this way, we have started concentrating on self. We are accepting self more and more. Then we will realize our real nature. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। Again place both palm on the posterior surface of head. श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। ऑब्जर्व ब्रेथ। धीरे धीरे सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ, पीछे की तरफ इस प्रकार झुकाएं, इस प्रकार मोड़ें कि मोड़ने में अच्छा लगे। प्लेसिंग बोथ palm on the posterior surface of head. Observe breath and curve head and spine towards left, right, backward, forward slowly. Bending should be very comfortable. During this, whatever we feel, pay highest respect and honor to all changes we realize within head to toes. Because by concentrating on head to toes and by concentrating on various changes within,
we will realize our real nature. Who am I? Who are we? We are curving towards right, towards left, backward, forward slowly. Bending should be very comfortable. हम धीरे धीरे झुका रहे हैं सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ बाईं तरफ झुकाने की क्रिया बहुत अच्छी तरह से हो. पीछे की तरफ आगे की तरफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक इस रचना में, इसमें होने वाले अनगिनत परिवर्तनों में इसका महत्व अनंत है, असीम है. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप. मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली. अब आइए हम समझें, जब अपने ऊपर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि अंदर में जो ज्ञान है भरा हुआ है उसकी यात्रा पूर्व से पश्चिम होती है. फिर पश्चिम से पूरब की ओर अगर नहीं हो पाती है, पूर्व से पश्चिम को यात्रा हुई और पश्चिम में अस्त हो गया तो उसके बाद अंधेरा छा जाता है. जैसे हम देखते हैं जब सूरज पूरब में उगे और पश्चिम में गए तो अचानक अस्त हो गए, फिर अंधेरा हो गया. ऐसे अपने जीवन में होता है. अपने अंदर का जो ज्ञान है जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है वह पश्चिम जाकर अस्त हो गया, फिर पूरब की ओर नहीं लौटा या उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो जीवन में अंधेरा छा जाता है. तो हमें करना क्या है कि जिस प्रकार पूरब से सूरज गए पश्चिम में गए, हमें ये भी पता कर लेना है पश्चिम से पूरब की ओर आ रहे हैं. घबराने की आवश्यकता नहीं है, आने की प्रक्रिया अलग है. ऐसे अपने ऊपर नियंत्रण करना है. जो हमारा ज्ञान पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, फिर पश्चिम से पूरब की ओर कैसे हम स्वयं ले आए हम. ऐसा लाने पर अंधेरा नहीं छाएगा, नहीं तो अंधेरा छा जाता है. जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, पेड़ों के बारे में, जानवर के बारे में पता चला, पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं. थक गए यानी ज्ञान का सूरज छिप गया. फिर क्या हुआ, कहते थकावट आ गई. ये थकावट क्या है? अंधकार है. ये पढ़ते पढ़ते अब सिर भारी हो गया, तकलीफ हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, अंधकार हो गया. हम पढ़ाई करते हैं किस चीज़ की? किसी चीज़ को जानते हैं, एटम क्या, मालिक्यूल क्या, ये पेड़ पौधे क्या, जीव जंतु क्या, यही तो पढ़ते हैं. टेलीस्कोप लेकर के हम नक्षत्रों को पढ़ते हैं, सभी तारामंडल को पढ़ते हैं. और पढ़ते पढ़ते होता क्या है? सभी को होता होगा कि पढ़ते पढ़ते भाई थक गए, अब बंद करिए, अब सो जाइए. थक जाना क्या है? ये पता चलता है कि थकावट है, यही तो अज्ञान है, यही अविद्या है, यही अंधकार है. Try to think in this way, that when we are trying to know about the things, what is this atom and molecules, what is the plant and animals, what is the astral sign, solar system, stars, trying to know more and more. We want to know other. I want to know who are you. Great inquiries I want to get about you. After some time you will find we are tired. When you see the television, after sometimes we are tired. Experiencing tiredness is called darkness. Tiredness never exists, but we feel it because
The knowledge from inside is going outside to know something. After that, that knowledge there, now they are disappeared. I don't have time to study now. Let us close the chapter. Let us relax. Because I am tired. How to control over it? That is the important thing, we have to learn it. Because when we start knowing more and more about external object, atom and molecules, plant and animals, these galaxies, solar system, stars, we should get more energy. We should not have tiredness. We have to learn this. The moment you are learning this, then you have achieved this status, that knowledge from east is going to the west, then returning from west to east. Now knowledge is not disappearing. Like externally you see the sun rises in the east and going to the west and disappears. In our case it should not be there. When it will be there, you will feel tiredness. You will feel that I am incapable. You will realize there is birth and death. In fact, there is no birth and death. अच्छी तरह से याद रखिए कि जैसे बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि सूरज में पूरब उगे, पश्चिम में गए, अस्त हो गए, अंधेरा छा गया, ऐसे अपने अंदर होता है। अंदर के ज्ञान के तरंगे ये बाहर पड़ती हैं। हम खोज करते हैं कि एटम है, मॉलिक्यूल है, ये पेड़ पौधे, ये जानवर हैं, आप कौन है, आप कौन है, ये खोज करते करते कहते कब थक गए हम। ये थकावट की अनुभूति ही डार्कनेस है। ये आइए इसको दूर करें, इस डार्कनेस को। होना क्या चाहिए, हम जितना जाने एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, अणु परमाणुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतु या आप के बारे में, उतना हमारे अंदर ज्ञान बढ़ना चाहिए। जानने की क्रिया में हमें ज्ञान बढ़े, थकावट न आए, थकावट दूर हो, क्रिया योग विज्ञान यह सिखाता है। आइए हम आपको बताते हैं। कॉन्शस कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट and from west to east. Then B point is direction of the knowledge. We have to control of the direction of knowledge from north to south and from south to north. In Kriya Yoga meditation, we do this experiment to have this state, control over this knowledge, direction of knowledge, मूवमेंट ऑफ द नॉलेज। क्रिया विज्ञान में हम इस पर कंट्रोल कर लेते हैं कि अपने अंदर से ज्ञान जो पश्चिम में गया, बाहर को कहते पश्चिम, अंदर को कहते पूरब। तो यहाँ से ज्ञान जब पश्चिम में गया कुछ जानने के लिए, तो उसके बाद क्या हो, जाकर के थकावट न लगे, हमें और ताकत मिले और शक्ति मिले और जीवन मिले। तो ज्ञान गया पश्चिम में लेकिन बुझा नहीं, फिर हमें ज्ञान और मिला, थकावट नहीं आई, हमारी थकावट दूर हुई। ये है सुविधा क्रिया योग विज्ञान में। ये है सिर, ये है रीढ़, ये है माउथ ऑफ गॉड, मेडुला का क्षेत्र, और ये है भ्रूमध्य। पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान फैला हुआ है। यहाँ से मेडुला में प्रवेश करता है, फिर पूरे ब्रेन में इकट्ठा होता है, फिर स्पाइन से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर सेंटर से यहाँ इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से बाहर की तरफ जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब ज्ञान आता है, ये शक्ति आती है, शांति आती है, अंदर में इकट्ठा करके बाहर की ओर जाती है। तो अपने इस स्थिति को पूरब कहते हैं। हमारी पोजीशन पूरब की है, हमारा अस्तित्व ही पूरब है। यहाँ से ज्ञान जब बाहर जाता है तो इसको वेस्ट कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। पश्चिम में ज्ञान गया, हम किसी चीज़ के बारे में सीखना चाहे तो थक गए, अब नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है, छोड़ दिए। क्रिया ध्यान में क्या होता है,
हम किसी चीज़ के बारे में सीखें, मान लीजिए कि एक एनिमल है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ज्ञान यहाँ पर गया, फिर क्या हम करते हैं, फिर ज्ञान लौटता है। एक ज्ञान गया और फिर ज्ञान लौटता है, तो ज्ञान जितना गया और ज़्यादा लौटा, हमारी थकावट दूर हो गई, चिंता दूर हो गई, हमें अंदर और शक्ति आई और क्षमता बढ़ी, वाइटलिटी बढ़ी, इम्यूनिटी बढ़ी। ऐसा होता है जब क्रिया ध्यान करते तो ये स्थिति होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने में ज्ञान आता है, शक्ति आती है, शांति आती है, थकावट नहीं आती है। इसी की आवश्यकता है। इसी आवर सेल्फ, हेड टू टो सेल्फ इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ईस्ट। वी रिप्रेजेंट, सेल्फ रिप्रेजेंट्स ईस्ट, and what is called the knowledge is called the power which is present everywhere. That is omnipresence. It is entering into medulla, mouth of God. From there it is distributed brain and spinal cord. From there going outside. Let us have an example. This is an animal. I want to know about this animal. Then my knowledge is going on this animal. And if you are practicing Kriya Yoga meditation, then we will realize the knowledge how much is going, now returning more inside. Now we are having gain. This thing happens, we get more knowledge. We are giving less and coming more. Then we realize that when we try to know anything, we remove our tiredness, our tension, our problem. We feel more peace and joy. This is called the achievement of Kriya Yoga science. Therefore we need this Kriya Yoga science. Kriya Yoga science इसलिए आवश्यकता है। मान लीजिए कोई पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, पौधा है, सूरज और चांद हम जानना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम जानने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर की ओर शक्ति बढ़नी चाहिए, शांति बढ़नी चाहिए, एक आनंद बढ़ना चाहिए। ऐसा आनंद जो इंद्रियों के सुख से भिन्न होता है, इसे नित्य नया आनंद कहते हैं। ये सुविधा है। जब हम क्रिया विज्ञान पढ़ते हैं तो एक घटना अपने आप होने लगती है। जैसे जैसे दूसरे के बारे में जानेंगे उससे हमारा संबंध मजबूत होगा। अगर क्रिया नहीं पढ़ेंगे तो जैसे जैसे दूसरे के बारे में जानेंगे उसके अंदर बुराई नज़र आएगी, फिर कमियां नज़र आएंगी। होना क्या चाहिए, जैसे जैसे आपके बारे में जाने आप और अच्छे लगने चाहिए, आपके अंदर अच्छाई दिखे। जो कमी दिखती थी है ही नहीं, वो हमारी गलतफहमी थी। ये कब होगा, जब हम क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे तब होगा ये। सपोज दैट आई वांट टू नो अबाउट यू। जनरली व्हाट हैपेंस इन डे टू डे लाइफ, व्हेन वी स्टार्ट नोइंग समवन, देन वी गेट मोर प्रॉब्लम। We find many faults, many weakness. Oh, that person is not good. I was thinking good, but I was in mistake. I found lot of mistakes in that, lot of shortcomings. But Kriya Yoga science speaks. If you get me, if you have Kriya Yoga knowledge, when I start knowing about you, then I feel you are better and better. Oh, you are so good, you are so nice, you are so pure, you are very good, you are very good. We realize this is what we need at present time. When we start knowing each other, we both should feel very good, very good. Therefore we need Kriya Yoga science. अब देखिए अगला क्या होता है कि ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ दिशा को साउथ कहते हैं, ऊपर तरफ की दिशा को नॉर्थ कहते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ है। तो ये पता चलता है कि जब ज्ञान लौट करके आता है पश्चिम से फिर पूरब की ओर, तो उसके बाद एक समय आता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर ज्ञान प्रवाहित होता है। उसमें पता चलता करे हम तो देवता हैं। When you practice Kriya Yoga meditation, then what happens? The knowledge starts returning back. Then we get more and more knowledge flowing inside the spine. Then flow of knowledge is more from the south towards north. Then we realize we are angels. We are children of God. We are not simple creation. This is what we need. We need to realize that we are children of God. Therefore, I request all of you, practice it more and more. The moment we learn
how to concentrate here, how to place 100% concentration of mind on this area, medulla area, then we will realize I am one with the Vishnu, I am one with the Brahma, I am one with the Shiva. This is what we need. क्रिया युक्त ध्यान करते करते जब हम पूरी एकाग्रता इस मेडुला पर केंद्रित कर लेते हैं, जब 100% मन की एकाग्रता यहाँ हो जाती है, तब ज्ञान होता है कि अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे ब्रह्मा के बीच दूरी शून्य है, हमारे विष्णु के बीच में दूरी शून्य है, हमारे शिवा के बीच में दूरी शून्य है। इसलिए क्रिया विज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसको छोड़िए मत। अगर इसमें आ गए हैं, इसको पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो आप आराम से पढ़ते जाइए। आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि हम मौजूद हैं आपकी सेवा के लिए। Therefore, I request all of you, once you have accepted it, never leave it. Practice with the full devotion. You will not feel any problem in practicing because I am your humble servant. I am available for you. This is the brief message for today. With the request, never leave practice. Practice more and more. ये संदेश है आपके लिए। क्रिया युक्त ध्यान कभी मत छोड़िए, इसको अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। इसी के साथ आइए हम लोग क्रिया युक्त ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। विद दिस मैसेज लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया का मेडिटेशन। इस सत्संग सभा में नमन करें। Let us bow down to this holy congregation.